السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. محترم حضرات، زکوٰۃ پر پروگرام چل رہا ہے اور آج بڑا اہم پروگرام ہے. آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور بہت ترتیب سے بات کی جائے گی انشاءاللہ، زندگی رہی تو. یہ اس کا دوسرا پروگرام ہے. ہم نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ بات یہ کریں گے کہ زکوٰۃ کتنی دی جائے گی اور زکوٰۃ کون دے گا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ دے گا کون. دیکھیے، زکوٰۃ دینے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 7 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں پائی گئی تو اس کا مطلب کہ وہ زکوٰۃ پے نہیں کرے گا. ہم ایک ایک شرط پہ بات کریں گے اور ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ وہ 7 ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم کو زکوٰۃ پے کرنا ہے، اور اگر وہ 7 میں سے کوئی ایک مس کر رہی ہے تو ہم کو زکوٰۃ نہیں پے کرنا ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ ایک اگر غیر مسلم آج اسلام لایا اور اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، پچھلے جتنے دن بھی رہے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں، آج کے بعد 1 سال کے بعد وہ زکوٰۃ دے گا. تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا. نمبر 2، امیر ہونا. کیا ہونا؟ امیر ہونا. ہم اس کو اپنے ٹیکنیکل ورڈ میں کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا. کیا ہے؟ صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب کو تشریح کر رہے ہیں. کون صاحب نصاب ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ ایک ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک آدمی صاحب نصاب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے پاس پراپرٹی آ گئی. کیا ہو گئی؟ پراپرٹی آ گئی. اس کے پہلے تک وہ صفر تھا. جو پراپرٹی آئی وہ پراپرٹی اتنی ویلو اس کی ہے پیسے میں کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے. 52.5 تولہ، تولہ جب بولتے ہیں تو اس کو آپ یاد رکھیں کہ 11.66 گرام = 1 تولہ ہوتا ہے. 11.66 مل کر کے 1 تولہ ہوتا ہے. اب تولے کا رواج نہیں بلکہ گرام کا رواج ہے. تو اگر 52.5 تولہ چاندی کو گرام میں کنورٹ کریں گے تو 612.36 گرام آئے گا. 612. تو اگر اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے پاس اتنی پراپرٹی آ گئی جو 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ایک ایسی تجارت ہو جو تجارت رننگ کر رہی ہے. مثال کے طور پر کپڑے کی دکان ہے یا ایک دکان ہے، اس دکان کی جو اسٹاک ویلو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے کراس کر گئی. اس کا مطلب آج یہ امیر ہو گیا، لیکن آج یہ زکوٰۃ نہیں پے کرے گا. اگلی سال اسی دن وہ زکوٰۃ پے کرے گا اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے اس کی تجارت نیچے نہیں آئی، چاندی خرچ نہیں ہوئی، کیش بچا رہا. اس پر ہم الگ سے بات کر لیں گے. تو دوسرا آدمی کہنا، پہلے آدمی کون کہ ایک آدمی کا باپ انتقال ہو گیا، وہ امیر ایسے بن گیا. ٹھیک. لڑکی کی شادی ہوئی، آج تک وہ صفر تھی. شادی ہوئی، گھر والوں نے کچھ زیور دیا، کچھ اس کو سسرال سے ملا. دونوں زیور کے بارے میں سمجھ لیں. جو اس کے امی ابو نے دیا ہے، یعنی جو اس کو میکے سے زیور ملا ہے، اس کی تو وہ 100% مالک ہے. یہ جو سسرال والے جو زیور ڈالتے ہیں، کبھی کبھی اس میں نیت یہ کرتے ہیں کہ صاحب پہننے کے لیے دے رہے ہیں، مالک ہم ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب طلاق ہونے کی بات آتی ہے تو سسرال والے کہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا زیور کیا کرو، واپس کرو. اسی طرح میکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا ہوں وہ کیا کرو، واپس کرو، کیونکہ میں لڑکے کو جہیز نہیں دیا ہوں، لڑکی کو جہیز دیا ہوں، لہذا وہ سامان واپس کرو. تو اگر لڑکی کے پاس جو سونا میکے سے آیا ہے وہ تو اس کی مالی کھائی گئی ہے. اگر لڑکے والے نے اس نیت سے دے دیا ہے
کہ نہیں हदीस में आता है अगर किसी को गिफ्ट कर दो तो कर दो, अगर इस नियत से कर दिया तो गोया दोनों की वो मालिक हो गई। अब अगर वो मालिक हो गई 52.5 तोला चांदी के बराबर या 7.5 तोला सोना, मिसाल के तौर पर चांदी कुछ भी नहीं, दोनों ने सोना सोना दिया और 7.5 तोला सोना के बराबर अगर उस लड़की के पास आ गया तो जिस दिन इसकी शादी हुई है अगले साल इसको इसी दिन उसके ऊपर ज़कात पे करनी है। ठीक है। अच्छा, 7.5 तोला का मतलब ग्राम में होता है 87.48 ग्राम। ये दूसरा हो गया। तीसरा, जॉब वाला। एक आदमी आज तक जॉबलेस था, आज उसको जॉब लग रही है। ठीक है। जॉब जो लगी, जो उसको सर्विस मिली है, उसमें उसकी सैलरी इतनी है कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है। अगर 52.5 तोला की आज वैल्यू हम निकालेंगे, जो हमने निकाला है 65 रुपए पर ग्राम के लिहाज से, तो 39,000 के लमसम आएगा। अगर उसकी सैलरी 39,000 रखी गई और 1 अगस्त से उसने ज्वाइन कर लिया, 1 अगस्त को ज्वाइन किया और सैलरी कितनी रखी गई है 39,000, जैसे ही 39,000 सैलरी वो अपने हाथ में पकड़ेगा, कब पकड़ेगा? वो 1 को ज्वाइन किया है, पकड़ेगा 1 अक्टूबर को, है ना। 1 अक्टूबर को अगर 39,000 उसके हाथ में आ गया और उस वक्त उसके पास कोई कर्जा नहीं था, यही इनकम हुई, इसका मतलब ये अमीर हो गया। अब अगले साल फिर वो देखेगा कि ये 39,000 जो हमको मिले खर्चा होते रहे, बीच में आता रहा जाता रहा। अगली 2012 में उसको देखना है कि उस तारीख को उसके पास 39,000 तक अगर बैंक बैलेंस बचा हुआ है, इसका मतलब ये अमीर है, इसको ज़कात देनी है। ठीक है। एक दूसरी जॉब वाला, एक ऐसी जॉब वाला जिसकी सैलरी 39,000 नहीं है, 10,000 पा रहा है, 15,000, लेस देन 39,000 है। आज जॉब किया, तनख्वाह मिली। इससे पहले वो सिपर है, आज जॉब किया, तनख्वाह मिली, खा रहा है, पी रहा है उसी में से। अगली साल पता चला कि उसके पास 39,000 बचा ही नहीं है, तो अमीर नहीं हुआ अभी। ऐसे 4-5 साल जॉब कर लेने के बाद एक दिन अचानक उसको मालूम हुआ कि अब मेरी बचत कितनी हो गई है, 39,000 हो गई है। अच्छा, उस दिन चांदी का रेट लगाएंगे, हम आज के चांदी का रेट के मिसाल दे रहे हैं। जिस दिन वो समझेगा कि 52.5 तोला चांदी यानी 612.36 ग्राम चांदी के वैल्यू के बराबर हमारे पास बचत हो गई है, इसका मतलब आज वो अमीर हो गया। अब अगले साल वो ज़कात अदा करेगा। दोनों में जॉब वाले ने फर्क समझ लिए। पहला जॉब वाला पहली ही सैलरी उठा लिया जिसमें 39,000 आ गए। दूसरी जॉब वाला 10,000, 5,000, 6,000, 8,000 जो भी था बचाता रहा, 2 पैसे 10 पैसे बचा करके एक जमाने के बाद आकर के क्या हुआ कि उसके पास 39,000 बच गए। इसका मतलब उस दिन वो साहिब निसाब हुआ। अब अगली साल वो पे करेगा अगर वो 39,000 बचा रह गया तो। दरमियान में खत्म होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरमियान में 50,000 हो गया, 80,000 हो गया, 90,000, अगली साल कितना है? 39 से नीचे हो गया, खत्म। 39 के ऊपर हो गया तो टोटल पर ज़कात देगा। ये नहीं कि 39 के बाद 40,000 हुआ तो 1,000 पे ज़कात देगा, नहीं, 39 प्लस 1,000 पे ज़कात देगा। ठीक है, ये जॉब वाला। अच्छा, तीसरा फैक्ट्री वाला। फैक्ट्री एक आदमी ने लगाई। अब फैक्ट्री 2 तरीके से लगा सकता है, या तो उसको कहीं से पैसे मिल गए और उसने फैक्ट्री लॉन्च कर दी, या ये कि उसने लोन लिया और फैक्ट्री लगाई। पहले हम उसकी मिसाल देते हैं कि जिसने लोन नहीं लिया, कर्ज नहीं लिया और फैक्ट्री लगा डाली। फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी, फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी, फैक्ट्री के लिए जो है वो और जो कुछ भी इंतजाम था, कागजी कार्रवाई जो कुछ भी करना था किया उसने। करने के बाद ये जितना खर्चा किया है ये कोई चीज अभी इसके हाथ में नहीं मानी जाएगी। अब वो उसमें से प्रोडक्शन शुरू हुआ, काम शुरू हुआ। पता चला 2 महीने के बाद उसने प्रोडक्शन कर दिया और इतना कर दिया कि 39,000 का उसके पास बच गया सारा खर्चा पानी निकालने। तो इसका मतलब ये साहिब निसाब आज हो गया, समझे नहीं? 2 महीने के बाद वो फैक्ट्री जिस चीज का ये प्रोडक्शन कर रहा है वो, इससे कोई बहस नहीं है। अगर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद घर का खर्चा पानी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है,
बिल पे कर रहा है, टेलीफोन बिल पे कर रहा है, 4 महीने के बाद पता चला कि साहब इस फैक्ट्री ने हमको 39,000 रुपए क्या कर दिए, बचा दिए। इसका मतलब आज ये अमीर हो गया। अब अगली साल वो देखेगा कि टोटल मेरे पास कितना है। टोटल से मुराद ना फैक्ट्री की जमीन मानी जाएगी, ना फैक्ट्री की मशीन मानी जाएगी। हो सकता है कि फैक्ट्री मशीन 2 करोड़ रुपए की लगी हो, इससे कोई बहस नहीं है। वो देखेगा कि 39,000 रुपए से ज्यादा मेरे पास अगले साल उस तारीख को बचा है, लिहाजा उस पर वो ज़कात देगा। न जमीन की मिल्कियत पर, न फैक्ट्री की बिल्डिंग पर, न फैक्ट्री की मशीन पर। ये उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने बगैर लोन लिए हुए फैक्ट्री लगाई है। अब दूसरा ले लीजिए कि एक आदमी ने लोन लिया और फैक्ट्री लगाई। जितना भी लोन लिया, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जैसे भी लिया, इससे कोई बहस नहीं है। वो एक अलग मसला है, सूद पर लोन लेना लेना वो एक अलग टॉपिक है। एक आदमी ने लोन लिया है, चाहे पर्सनल लोन लिया है, किसी ने मदद कर दिया है, सरकारी लोन लिया, जैसा भी लोन लिया है, लोन लगा करके फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने के बाद 6 महीना 7 महीने के बाद फैक्ट्री ने फायदा दिया, इतना फायदा दिया कि लोन इसका बराबर हो गया। चाहे ये बराबर करे या ना करे, उतना पैसा आ गया कि लोन पे कर सकता है। उसके बाद 39,000 एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब आज वो अमीर हो गया। जब तक वो लोन इसके ऊपर बरकरार रहेगा तब तक वो किसका मतलब समझा जाएगा कि साहब वो अभी साहिब निसाब नहीं हुआ है। ठीक है, अगर अब गौर से सुनिएगा इस बात को, ये जो लोन लिया है, ये लोन शर्त ये है रॉ मटेरियल के लिया हो, फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए और मशीन के लिए नहीं लिया हो। ये समझे बात को, क्योंकि बिल्डिंग और फैक्ट्री की मशीन तो करोड़ों रुपए में आएगी। जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल का लोन ही लोन माना जाएगा, फैक्ट्री का लोन लोन नहीं माना जाएगा, उसको वो माइनस नहीं करेगा इसमें से। बात समझे नहीं समझे मेरी? 2 करोड़ रुपए में फैक्ट्री लगी, जिसमें से 1.5 करोड़ तो बिल्डिंग में लगा है और मशीन में लगा है। 50 लाख रुपए किसमें लगा है? उसके रॉ मटेरियल में, जिसके जरिए से बनाएगा वो। तो ऐसी शक्ल में उस रॉ मटेरियल के लोन को माइनस करेगा और करने के बाद 39,000 जब उसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो ज़कात देगा। क्यों? उसकी वजह क्यों है? ये जो मशीन भी इसकी है, ये इसका ऐसे फलवक तैयार है, उसको घटाने की जरूरत नहीं है। अगर वो जब चाहे तो फैक्ट्री की जमीन बेच करके और मशीन को बेच करके वो लोन को क्या कर सकता है, पे कर सकता है, लिहाजा वो माइनस नहीं किया जाएगा। तो ये फैक्ट्री वाले हो गए। एक आदमी इन्वेस्टर है, प्लॉट लेता है, बेचता है। अब इसमें हर चीज, मैंने एक प्लॉट को शामिल कर लिया है, आप सब चीज को कर सकते हैं। प्लॉट लेता है, बेचता है। प्लॉट लेने वालों की 2 किस्म है। एक वो लोग हैं जो प्लॉट लिए हैं कि 4 बच्चे हैं, घर बनाएंगे। ये अगर 4 बच्चे 5 बच्चे की इस नियत से लिया है कि हमारी बड़ी फैमिली है, ये घर बनाएंगे, तो किसी प्लॉट पर कोई ज़कात नहीं है। और अगर उसने लिया है प्लॉट की जब अच्छा रेट आएगा तो हम बेच देंगे, लिहाजा उसके ऊपर ज़कात होगी। पूरी वैल्यू निकलेगी उस दिन की जिस दिन की आप ज़कात देने जा रहे हैं। अगर आप पहले से आपके पास कुछ नहीं था, सिर्फ प्लॉट ही था, आपने आज प्लॉट खरीदा, कहीं से पैसा मिल गया, खरीद लिया आपने, प्लॉट के आप मालिक हैं और नियत है कि जब अच्छा रेट आएगा तो बेचेंगे, और प्लॉट की कीमत मोर देन 39,000 है, इसका मतलब आप अमीर हो गए। अगले साल आपको इस प्लॉट की पूरी वैल्यू पर ज़कात निकालनी है। समझ में आ गई? और अगर ये मेरा ऐसा नहीं है बल्कि यह बच्चे बनाएंगे, तो आदमी के पास 5 प्लॉट हो या 6 प्लॉट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, 5-6 प्लॉट ले रखा था, अब अचानक 2 साल के बाद उसकी नियत ये हो रही है कि अगर रेट अच्छा आ जाए तो इसमें से इस वाले प्लॉट को निकाल देंगे, बता रहे हैं। अब अगर उसने ये नियत कर ली कि लिया था बच्चे के बनाने के लिए, लेकिन मुझे जरूरत पड़ गई, बेटी की शादी है या कोई और दुनिया भर के काम हो सकते हैं, इस प्लॉट को हम निकालना चाहते हैं। जिस दिन वो नियत करेगा इस प्लॉट को निकालने की, उसके अगले साल उस प्लॉट पर ज़कात देगा, आज नहीं ज़कात देगा। ठीक है, जिस दिन उसने नियत कर ली उसके 1 साल के बाद अब उसके ऊपर क्या करेगा, ज़कात देगा। अच्छा, आम आदमी एक आदमी के पास कैश है, थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, 2-4 शेयर्स हैं, 1-8 प्लॉट है। ऐसे भी लोग हैं ना, ये ऐसे लोग ज्यादा हैं। सोना भी है थोड़ा चांदी, सोना भी 7.5 तोला से कम है, चांदी भी 52.5 तोला से कम है, कैश भी 39,000 से कम है। ठीक है,
सबसे पहले वो देखेगा कि सोने की वैल्यू क्या है, उसको नोट कर लेगा, चांदी कितने की है उसको नोट कर लेगा, कैश कितना है उसको नोट कर लेगा, शेयर जो खरीद रखे हैं मार्केट में उसकी आज वैल्यू क्या है उसको जोड़ लेगा, प्लॉट जो हमारे पास है और बेचने की नियत से ले रखा है उसको जोड़ लेगा। सबको जोड़ने के बाद देखेगा कि टोटल कितनी वैल्यू आ रही है। यकीनी बात है 39,000 बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ गई 39,000 में तो 5 लाख आ रही सारा जोड़ करके, और उसने 1 लाख रुपए कर्जा भी किसी से ले रखा है। कर्जा कैसा है? कर्जा जरूरत के लिए लिया है। जरूरत किसे कहते हैं? जरूरत समझ लें इस बात को। जरूरत कहते हैं कि अगर वो खर्चा आप नहीं करेंगे तो 3 चीजों से आप परेशान हो जाएंगे। क्या? खाना नहीं मिलेगा आपको, आपने कर्जा लिया है खाना खाने के लिए, कर्जा लिया है कपड़ा पहनने के लिए, कर्जा लिया है धूप पानी हवा से बचने के लिए, कर्जा लिया है अपनी इज्जत बचाने के लिए। ठीक है। अब एक आदमी ने कर्जा लिया है बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए, ये माइनस नहीं होगा, ये तुमने अपने सर खुद ले रखा है, ये कर्जा शरीयत नहीं मानती है। खतना करना है एक आदमी को, उसमें 50,000 रुपए कर्जा लेकर के खतरे की धूमधाम से कर रहा है, ये सारी चीजें नहीं मानी जाएंगी। हाँ, अगर कोई ऐसा खर्चा हो जो कि शरीयत में जरूरी, जैसे अकीका है, अकीका भी शरीयत में वाजिब नहीं, तुम्हारे पास ताकत है तो करो, नहीं ताकत है खामोश बैठे रहो। तो कर्जे के बारे में समझ लें, कर्जा माइनस कब होगा? जब हमने उसको अपनी जरूरत के लिए लिया होगा, और जरूरत को मैंने डिफाइन कर दिया कि ये जरूरत कहलाती है, इसके अलावा जितना हम कर्जा ले। मिसाल के तौर पर एक आदमी का स्टेटस ये है कि वो मोटरसाइकिल से चलता है। अब उसने क्या कर लिया, इसका स्टेटस कार का नहीं है, कार का कर्जा ले लिया इसने, ये कार का कर्जा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यही अरब दुनिया में कार लेगा तो अरब दुनिया में मोटरसाइकिल जरूरत नहीं, कार जरूरत है, वहाँ वो मानी जाएगी। आपके हुबली शहर में ये माना नहीं जाएगा। हाँ, एक आदमी की वो वैल्यू है कि वो कार पे चले, नहीं चल पा रहा है, कर्जा लेके, ये इसकी जरूरत शुमार होगी। मिसाल के तौर पर हुबली का मौसम है, हुबली का मौसम ऐसा है कि अगर यहाँ एसी न लगाया जाए तो आसानी से जिंदगी गुजारी जा सकती है। एक आदमी शो मारने के लिए एसी लगा रहा है, कर्जा ले रहा है, ये कर्जा नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक आदमी टीवी खरीदने के लिए कर्जा ले रहा है, ये कर्जा नहीं माना जाएगा। तो जरूरत के लिए जो कर्जा लिया है, तो सोना चांदी कैश प्लॉट शेयर सबकी वैल्यू जोड़ लेगा। जोड़ने के बाद माइनस क्या करेगा? जो उसने कर्जा ले रखा है उसको माइनस कर देगा। अच्छा, कुछ इसने कर्जा दे रखा है उसको फिर प्लस करेगा। अच्छा, वो कर्जे की 3 शक्ल हो सकती है। कर्जा दिया है, 100% श्योरिटी है कि पैसा वापस आएगा, तो ये इसमें जोड़ेगा इसको। 100% श्योरिटी है कि नहीं आना है, ये तो मौलाना साहब लिए, ये तो वापस करते ही नहीं है। अगर आपको 100% ये श्योरिटी है कि ये कर्जा वापस ही नहीं आएगा, तो आपको अख्तियार है कि आप उसको शुमार नहीं करें। जब कभी आ जाएगा तो जितने दिन की साल गुजरे हैं उतने साल का सबकी ज़कात उसके ऊपर पे करनी पड़ेगी। बात समझे? तीसरा कर्जा एक ऐसा भी है जो मियाँ बीवी का कर्जा है, जिसको महर कहते हैं। शौहर ने, क्योंकि हम अपने माहौल में रह रहे हिंदुस्तान में कि यहाँ उमूमन शौहर महर अदा करते ही नहीं है। ये जो शौहर का कर्जा है, यानी बीवी का कर्जा शौहर के ऊपर है, वो अगर बीवी ज़कात निकाल रही है तो वो उसको शुमार नहीं करेगी, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, मर भी जा सकता है और महर नहीं दे, लिहाजा ये उसको अपने प्लस में शुमार नहीं करेगी औरत, बल्कि जब आएगा तो सिर्फ उसी साल की ज़कात देगी, पिछले सालों की ज़कात नहीं देगी, महर के बारे में सिर्फ। बात समझ में आ गई? तो ऐसी शक्ल में अब ये प्लस लोन करेगा, लोन करने के बाद उसके ऊपर 2.5% ज़कात देगा। ठीक है। तो अमीर से मुराद ये है। अच्छा, औरतें खास कर सुन लें, औरतों के पास मिसाल के तौर पर एक औरत के पास थोड़ा चांदी है, थोड़ा सोना है, न चांदी 52.5 तोला है, न सोना 7.5 तोला है। मिसाल दे रहा हूँ, 2 ग्राम 20 ग्राम सोना है, 40 ग्राम क्या है? चांदी है। अब अगर ये सोना को कन्वर्ट करेगी तो चांदी 52.5 तोला खरीदी जा सकती है। अगर चांदी को सोने में कन्वर्ट करेगी तो 7.5 तोला सोना नहीं खरीदा जा सकता।
ऐसी शक्ल में क्या करेगी, बात समझे मैंने नहीं समझे। अच्छा, तो ये देखें कि जो जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो अपने स्केल से नीचे हो। 7.5 तोला सोना स्केल है, इसके पास 2 ग्राम है, यानी 87 ग्राम होना चाहिए था, उसमें 20 ग्राम है, तो ये स्केल से काफी दूर है। चांदी 40 तोला 40 तोला मौजूद है, 52 तोला के करीब है, ज्यादा चांदी को कन्वर्ट नहीं करो, सोने को कन्वर्ट करो। इसका उल्टा करना है, 5 तोला सोना है, 2 तोला चांदी है। अब सोना अपने स्केल के करीब है, सोना को कन्वर्ट नहीं करो, चांदी को सोने में कन्वर्ट कर दो, दोनों 50-50 है। 25.5 तोला सोना, 25.5 तोला चांदी और 3.5 तोला या 4.25 तोला सोना। अब किसको कन्वर्ट करे, जिसमें गरीब का फायदा हो उसको कन्वर्ट कर दो, जिसमें गरीब का फायदा हो रहा है उसमें। यही बात है, अगर चांदी को कन्वर्ट करके सोना खरीदोगे तो ज़कात नहीं आएगी, और अगर सोना 3.5 तोला को कन्वर्ट कर दोगे तो चांदी ज़कात से स्केल से कहीं ऊपर चली जाएगी। तो जिसमें गरीब का फायदा हो वो करके औरतें ज़कात निकाल दें। अच्छा, अब औरत को शिकायत ये है कि साहब मेरे पास तो कैश ही नहीं रहता, हम ज़कात, सोना तो मौजूद है, कैश मौजूद नहीं है, क्या वो ज़कात कहाँ से निकाले। इसका 2 मसले का जवाब है। सबसे पहले शौहर से कहे कि देखो ये मेरे ऊपर ज़कात है, आप इतना पैसा दें कि मैं ज़कात निकालूं। शौहर बोलता देखो तुम्हारा सोना तुम्हें जानो, मैं जिम्मेदार नहीं। शौहर को ये अख्तियार है कहने का, क्या सोना तुम्हारा है, जिम्मेदारी तुम्हारे सर है, ज़कात तुम नहीं निकालोगे, अज़ाब तुमको मिलेगा, हमसे तुमसे इस मामले में कोई मसला नहीं। अब औरत लाजिम तौर पर सोने को बेचे और ज़कात अदा करे, जो भी उसके पास है उसमें से उतना बेचे कि वो ज़कात अदा कर सके, चाहे ज्यादा बेचे चाहे कम बेचे, बहरहाल 2.5% उसको उसमें ज़कात देनी ही देनी है। शौहर के न देने की वजह से औरत का एक्सक्यूज या उसका उज्र काबिल कबूल नहीं होगा, उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। गोल्ड को पूरी दुनिया कैश मानती है, और हर आदमी जो गोल्ड खरीदता है वो इस नियत से खरीदता है कि वक्त जरूरत पर क्या होगा, काम आएगा। लिहाजा अल्लाह की जरूरत सबसे बड़ी जरूरत है, यहाँ पर ज़कात के लिए पैसे नहीं है, गोल्ड बेचो और ज़कात अदा करो, तब हकीकत में मालूम होगा कि अल्लाह से मोहब्बत है या गोल्ड से मोहब्बत है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग चाहे अमीर बनते हैं और साहिब निसाब होते हैं और ज़कात अदा करते हैं। ये साल भर जब आदमी आप अमीर बने तो इसका साल भर रहना जरूरी है। साल भर से मुराद समझ लें, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने दुकान करी है परचून की, जनरल स्टोर की, जनरल स्टोर की उसकी दुकान है, कपड़े की दुकान है, रेडीमेड की दुकान है, उसने पूरा स्टॉक की, अच्छा स्टॉक में जो वैल्यू लगाई जाएगी वो रिटेल प्राइस की नहीं लगेगी बल्कि थोक प्राइस की लगेगी। जो उसका थोक रेट है ना, हर चीज के थोक रेट की वैल्यू लगेगी, रिटेल प्राइस की वैल्यू नहीं लगेगी। तो थोक के लिहाज से आप उसकी वैल्यू निकाल लें कि साहब आज हमारी दुकान में माशाल्लाह 39,000 के ऊपर, जिसमें 52.5 तोला चांदी हम खरीद सकते हैं, इतना स्टॉक मौजूद है। अब साल भर ये 39,000 कैसे गुजरने का मतलब ये है, कभी 39,000 कम होकर के 35 हो गया, कभी 36 हो गया, कभी 51 हो गया, कभी 90,000 हो गया, कभी 27,000। अगले साल उस दिन जिस दिन आप ज़कात आपने अपने ऊपर तय कर रखी है कि इस दिन मैं हिसाब करूंगा, उस दिन वो 50,000 है, तो 50,000 पर ज़कात होगी। घर के साल भर में पैसा आता जाता रहा, और ये भी मुमकिन है कि एक पैसा कल ही 5,000 रुपए आया हो, उस पर भी ज़कात देनी होगी। ये मतलब नहीं है कि हर पैसे पर साल भर गुजरना, अगर हर पैसे पर साल भर गुजरने के बाद तो हर दिन ज़कात देने का है, क्योंकि आज वाले पैसे पे फिर अगले साल, कल वाले पैसे पर अगले साल, तो पूरा एक सीए डिपार्टमेंट चाहिए जो हिसाब करता रहे रोजाना। लिहाजा ये बीच में जो कुछ अप एंड डाउन हुआ है इससे कोई बहस नहीं है, बल्कि ये एक मरतबा क्वालिफाई आप कर गए तो अगले साल ये देखना है कि उस वक्त आपके पास उतना माल मौजूद है या नहीं मौजूद है। एक दिन पहले भी माल आया है, उसके ऊपर भी ज़कात देनी है। अच्छा, उसका उल्टा भी करना है, एक दिन पहले आपने क्या किया जा करके, जैसे 50,000 रुपए आपके पास है, आप समझ रहे थे अब हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं इसमें से। अब आपने क्या किया, 2 दिन पहले ज़कात देने से पहले जा करके जो है ना मोटरसाइकिल खरीदी 40,000 रुपए की, और जो आपको जरूरत भी है,
آپ نے 2 दिन पहले 40,000 खर्चा कर दिया, अब बचा कितना? वो 10,000 बचा। क्या ज़कात आपको नहीं देनी है। मतलब दोनों बातें याद रखें कि एक दिन पहले माल आया है तो ज़कात देनी है, और एक दिन पहले माल खर्च हो गया है तो ज़कात नहीं देनी है। अब आप सोचेंगे मौलाना तब तो अच्छा है, ज़कात से पहले दिन खरीद लो। ठीक है, ज़कात से बचने के लिए एक दिन पहले मोटरसाइकिल खरीद लो। अगर इस नियत से आपने मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल शोरूम से स्टार्ट करके घर पे लेकर के आए, आधा घंटे के बाद उस मोटरसाइकिल को बेचना चाहो तो 40,000 में कोई नहीं लेगा। कि लेता है? कोई नहीं लेगा। चाहे 500 रुपए कम करे, लेकिन आपको कम करना ही करना है। तो अगर 2-3 दिन गुजर गया तो 3-4 हजार लूट कर गए, तो आपने इधर अगर ज़कात बचा लिया 50,000 में, तो इधर लूट करके बराबर हो गया मामला। ये एक बात है, वो अल्लाह को देते, ये मार्केट में दे दी जिसका पता ही नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि सेकंड हैंड हो गई। लिहाजा ये नहीं समझे कि इस तरीके से बच करके हम फायदे में हैं, बच करके मजीद नुकसान में हैं। तो ये होता है इसका मतलब साल भर गुजरने का। अच्छा, उसके बाद कर्जा नहीं होना उसके ऊपर। जो बंदा अमीर हुआ है, मिसाल के तौर पर 50,000 हमारे पास जमा है और हमने 50,000 कर्जा भी ले रखा है या 30,000 कर्जा ले रखा है, तो अगर हम 50,000 में से 30,000 घटा देंगे तो हम मालिक कितने के हैं? 20,000 के। 20,000 में 52.5 तोला चांदी खरीदी नहीं जा सकती, लिहाजा इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। वो चाहे कर्जा दे या नहीं दे, कर्जा दे या नहीं दे, नहीं दे रहा है, बैठा हुआ है, उसके बावजूद वो साहिबे मकरूज है, वो कर्जा उसके ऊपर है, शरारतन नहीं दे रहा है, वरना उसको दे देना चाहिए। आकिल हो, देने वाला क्या हो? आकिल हो। अगर कोई पागल आदमी प्रॉपर्टी पर आ गई है, बाप की प्रॉपर्टी है, पागल को हो गई है, तो पागल आदमी के ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। इसी तरीके से बाप के मरने के बाद या किसी तरीके से छोटे बच्चे को बालिग नहीं है, उस बच्चे के पास प्रॉपर्टी आ गई है, तो ये बच्चा भी उस वक्त तक ज़कात पे नहीं करेगा जब तक कि ये बालिग नहीं हो जाएगा। ये 7 शर्तें जब पूरी होती हैं तो ज़कात दी जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो ज़कात देनी है ये बड़ा सिस्टमेटिक है। 2.5% देनी है या 5% देनी है या 10% देनी है या 20% देनी, सब एक दूसरे का डबल है। 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20। ठीक है, 2.5% किस पर ज़कात देनी है पहले वो सुन लें, फिर इस पर हम इसी पर बात करेंगे। 2.5% ज़कात आपको सोना, चांदी, कैश, तिजारत के माल पर, जिस किस्म की भी तिजारत है, फैक्ट्री के रॉ मटेरियल पर और फैक्ट्री के प्रोडक्शन पर, इन तमाम चीज पर 2.5% ज़कात देनी है। ठीक है, 5% ज़कात देनी है उस खेती के प्रोडक्शन पर जो खेती हमने की है, और उस खेती को पानी परवरदिगार आलम की जानिब से मिला है, हमने पानी नहीं दिया है। जितना पैदा होगा, अगर 100 किलो पैदा हुआ है तो आपको 5 किलो उसमें से ज़कात निकालनी है, उश्र कहलाता है। और अगर वो पानी आपने खरीद कर खेती की है तो आपको, सॉरी उल्टा बता दिया, अगर पानी अल्लाह की जानिब से है तो 10% देना है, पानी आपने खरीदा है तो 5% देना है। यानी 100 किलो पैदा हुआ तो 10 किलो देना है। अगर पानी रब की जानिब से है, आपने बोरवेल लगा रखी है, पानी खुद तैराब किया है, पानी पे किया गया है, कैसी जगह में 100 किलो पे 5 किलो आप उसके ऊपर क्या करेंगे? ज़कात। उसका साल का इंतजार नहीं किया जाएगा, हर फसल का जो कटने का टाइम है वही उसका साल है। ऐसा भी हो सकता है कि एक खेत में 2 फसलें 3 फसलें साल में उगाई जा रही हूँ, तो 2-3 फसल जितनी भी उगाई जा रही होंगी सबके ऊपर इसी लिहाज से ज़कात देनी है। तो 5% और 10% ज़कात किसान को देनी है। 20% ज़कात देनी है जो जमीन में गड़ा हुआ खजाना आपको मिल गया। दोनों तरीके से हो सकता है, किसी के बाप दादा गाड़ के चले गए थे सोना चांदी, आप कहीं घर बना रहे थे, वो आपको मिल गया, अगर वो है तो उसके ऊपर ज़कात देनी है, 20% देनी है, और साल भर गुजरने का इंतजार नहीं करना, आज फौरन देनी है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो जैसे हॉस्पिटल वगैरह में है, लोगों के पास खेत है और उसमें तांबा निकल रहा है या क्या कहते हैं लोहा निकल रहा है, एक किस्म की जो है चीजें वहाँ पे पैदा हो रही हैं, जो वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद जो उनके पास बच रहा है
हर मर्तबा उनको 20% उसमें से निकालना ही निकालना है, क्योंकि वो किसकी जानिब से है? परवरदिगार आलम की जानिब से है, लिहाजा उसके ऊपर 20% चाहे ज़कात देनी है। तो 2.5%, 2.5% का डबल 5%, 5 का डबल 10%, 10 का डबल 20%, इस तरीके से है। इसमें दुबई वगैरह में एक मसला है, मैंने यहाँ इस मसले की तहकीक करनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाई। कभी कभी इनाम आदमी का निकल आता है, कोई इनाम निकल आया और वो इनाम ऐसे आदमी का निकला जो पहले से साहिब निसाब है, पहले से साहिब निसाब है, और वो इनाम ऐसा निकला जो जायज इनाम है, तो ऐसी शक्ल में उसके ऊपर जो है वो 20% ज़कात देने की बाद लोगों ने बात कही है, लेकिन हमको इसकी दलील मिल नहीं पाई। दुबई वगैरह में, अरब दुनिया में ये बहुत होता है कि आप 50 रुपए का सामान खरीदें, आपको उन्होंने टोकन दे दिया, टोकन के बाद 1 महीने के बाद उसमें ड्रॉ होगा, ड्रा में अगर आपका नाम निकल आया तो 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख दिरहम तक भी जो है उसमें निकलता है। हिंदुस्तानी 50-60 लाख रुपए का भी इनाम निकलता है। तो जैसे ही वो इनाम निकलेगा उसके ऊपर 20% ज़कात देनी है। बाद लोगों की राय है, लेकिन इसकी दलील हमको मिल नहीं पाई है। अच्छा, तो बालफागे दीगर 2.5% ज़कात देनी है किस चीज के ऊपर? सोना के ऊपर, चांदी के ऊपर, कैश के ऊपर, माल तिजारत पर, हर किस्म के दुकान के स्टॉक पर। किसी चीज की भी दुकान है उसके स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। अगर बंदा सिर्फ वही दुकान स्टॉक का ही मालिक है, सोना चांदी कैश कुछ भी नहीं है, और उसकी वैल्यू 39,000 से ज्यादा है, 52.5 तोला चांदी से ज्यादा है, तो उसके ऊपर 2.5% ज़कात निकालेगा। शेयर पर ज़कात 2.5% निकाली जाएगी। शेयर जो भी आपने खरीदा है, जिस दिन आप ज़कात निकाल रहे हैं उस दिन उस शेयर की वैल्यू क्या है, उस लिहाज से उसके ऊपर 2.5% ज़कात निकाली जाएगी। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट एक आदमी ने कर रखा है, ये अलग बात है कि फिक्स डिपॉजिट इस नियत से करना कि ये सूद लेकर के दुगना हो जाएगा, ये नाजायज है। दुगने पर ज़कात नहीं होगी, जितना आपने ओरिजिनल आपकी कैपिटल है उसके ऊपर ज़कात होगी, कि हराम माल पर ज़कात नहीं होती है। एक आदमी चोरी करके लेकर आ गया है, एक आदमी रिश्वत करके लेकर आ गया है, एक आदमी सूद से कमा के रखा है पैसा, और उसको मालूम है इतना सूद का है, इतना असली है, असली पर तो ज़कात होगी, सूद पर ज़कात नहीं होगी। घर में चोरी का माल भी है, घर का माल भी है, जितना चोरी के माल के ऊपर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि परवरदिगार आलम अपने बारे में फरमाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न अल्लाह तय्यबुन, अल्लाह जो है पाक साफ है, और वो पाक साफी सफाई को और तहारत को पसंद फरमाता है। लिहाजा इस किस्म का माल आप अपने पास रखे, वो कचरा है आपके लिए, परवरदिगार आलम के दरबार में उसको पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। यही वजह है कि मस्जिद वगैरह में भी इस किस्म का माल नहीं लगाया जा सकता। बाद मदारिस वाले भी जो फुकरा हैं वो इस बात का एहतमाम करते हैं कि अगर उनको ये मालूम हो जाए कि ये बंदा सूद का काम करता है और 100% सूदी ही उसका बिजनेस है, तो उससे चंदा नहीं लेते। ये एक अलग बात है कि आज हम ले लें, लेकिन लेना नहीं चाहिए, ऐसे आदमी से चंदा लेना नहीं चाहिए। या एक आदमी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, टोटल उसकी चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, सारी आमदनी फिल्म की कमाई हुई है, बच्चा उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, वो बोल रहा मौलाना साहब मुझसे 5 लाख रुपए आपको मदरसे के लिए चंदा ले लो, हम उसे चंदा नहीं लेंगे, तो अपना 5 लाख रुपए अपने पास रखो। बात समझे? तो हराम जो चीज है, तो जो फिक्स डिपॉजिट किया गया है करना गलत है, लेकिन जितना आपने ओरिजिनल आपका जमा है उस ओरिजिनल पर आपको ज़कात देनी है। आपने चाहे 10 साल के लिए कर रखा हो, क्योंकि हर फिक्स डिपॉजिट को अपने वक्त से पहले ड्रॉ किया जा सकता है। सारे बैंक में ये होता है कि आपने जमा किया 5 साल के लिए, वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपके सूद की जो शरह है वो कम कर देगा परसेंटेज, लेकिन आप जब चाहें उसको ब्रेक करना चाहें उसको ब्रेक कर सकते हैं और आपका पैसा वापस हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से ट्रैवल चेक वगैरह लोग लेते हैं, उसके ऊपर भी ज़कात है। आप किसी कंपनी में आपके नाम ड्राफ्ट आया है, अभी कैश नहीं हुआ है, ड्राफ्ट की शक्ल में है, उसके ऊपर भी ज़कात है। और कर्ज के बारे में मैंने बता दिया कि अगर कर्ज पर आपको 100% चांस है तो आपको हर साल ज़कात देनी है, और अगर आपको चांस है कि ज़कात ये पैसा वापस नहीं होगा तो आप उस वक्त तक वेट कर सकते हैं जब तक पैसा आपके हाथ में ना आवे, लेकिन जब पैसा आपके हाथ में आ जाएगा तो आपको हर हाल में ज़कात देनी है। अच्छा, किन चीजों पर ज़कात नहीं है? किन चीजों पर ज़कात नहीं है ये समझ लें। इस्तेमाल की जितनी चीज हैं
جو ہماری ضرورت ہیں اور استعمال کی چیزیں ان کے اوپر کسی کے اوپر زکات نہیں ہے. آپ گھر میں آپ کے پاس کپڑے ہیں, فرنیچر ہیں, کیا کہتے ہیں کھانے پینے کے ٹرے ہیں, پلیٹ ہیں, یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے اوپر زکات نہیں ہے. اچھا, ایک آدمی کرائے کی بلڈنگ اس کا مالک ہے, کرائے پر اٹھائے ہوا ہے, بلڈنگ پر زکات نہیں ہوگی, اس کی کرائے پر زکات ہوگی. نہیں سمجھے بات؟ بلڈنگ 5 کروڑ کی ہے, کرایہ ماہانہ 2 لاکھ روپے آ رہا ہے, 2 لاکھ روپیہ وہی ایک اس کی آمدنی بچہ کچھ نہیں مثال کے طور پر, تو 2 لاکھ کے لحاظ سے 24 لاکھ روپے ہوئے. سال بھر میں اس نے گھر کا خرچہ بھی اس سے چلایا, کرتے کراتے پتہ چلا 5 لاکھ روپے اس کے پاس بچے ہیں. بلڈنگ مینٹیننس اس میں آیا, گھر کا خرچہ نکالا, کسی کو دیا لیا, 5 لاکھ روپے بچے ہیں. اس 5 لاکھ روپے پر زکات دے گا. جو بلڈنگ کی ویلو 5 کروڑ یا 4 کروڑ ہے اس کے اوپر زکات نہیں دے گا. اس میں لاجک ہے, جو بھی بلڈنگ آج آپ کو بنی نظر آ رہی ہے کل اس کو گرنا ہے نا. ہر بلڈنگ کو ایک نہ ایک دن کیا ہونا ہے, گرنا ہے. لہٰذا اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. وہ جو آپ کی آمدنی ہے, اگر آمدنی سے آپ کوالیفائی کر گئے زکات کو, یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس اس کی انکم سے بچ گیا سارا خرچہ پانی نکالنے کے بعد, تو ایسی شکل میں اس کے اوپر زکات دینی ہوگی, بلڈنگ کے اوپر زکات نہیں. یہی بات فیکٹری کے بارے میں سمجھ لیں. فیکٹری کی زمین, فیکٹری کی بلڈنگ اور فیکٹری کی مشین, تینوں چیزوں کے اوپر زکات نہیں ہو, چاہے 20 کروڑ کی ہو یا 50 کروڑ کی, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اچھا, ایک آدمی کے پاس جانور ہیں, گائے بھینس بکری ہے. گائے بھینس بکری کے اوپر وہ آگے مسئلہ آئے گا کہ کتنے پر کتنی زکات دینی ہے. وہ جو دودھ دے رہی ہے اس دودھ کے اوپر اس وقت تک زکات نہیں ہوگی جب تک کہ دودھ کو آپ تجارت میں نہیں لگائیں گے. مثال کے طور پر گھر میں پیدا ہو رہا ہے, 10 لیٹر دودھ ڈیلی آ رہا ہے, گھر میں ہی کھال پی کر کے کنارے کر دیں, اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. لیکن وہ دودھ کا دھندا کر رہا ہے تو یہ دیکھے گا کہ سال بھر میں اس نے کتنا بیچا, کتنا کھانے پینے کے بعد بچا ہے. اگر پھر وہ 52.5 تولہ چاندی کے علاوہ بچ جائے گا تو اس بچے ہوئے پر کیا کرے گا, زکات دے گا. ورنہ دودھ کے اوپر جب تک تجارت نہیں ہوگی تب تک زکات نہیں ہوگی. اچھا, سمندر سے نکلنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر کسی کے اوپر زکات نہیں. اسی طریقے سے سونا اور چاندی کو چھوڑ کر جتنی چیز زمین سے نکلتی ہے, غور سے سنیے گا, وہ چیز اگر آگ میں ڈالی جائے تو پگھل جائے اور آگ میں ڈالی جائے تو نہیں پگھلے. اگر پگھلے گی تو زکات ہوگی, نہیں پگھلے گی تو زکات نہیں ہوگی. نہیں سمجھے؟ سونا اور چاندی اگر آپ آگ میں ڈالتے پگھلتا کہ نہیں پگھلتا, لوہا ڈالتے پگھلتا نہیں پگھلتا, تانبا ڈالتے پگھلتا نہیں پگھلتا, پیتل ڈالتے. چونا ہے آپ کے پاس, آپ کے کھیت میں چونا نکل آیا, چونا نہیں پگھلے گا, چونے کے اوپر زکات نہیں ہوگی. وہ مٹی کی ایک قسم ہے. سمجھے؟ وہ جو 20% میں نے آپ کو بتایا, وہ 20% میں شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو ہماری زمین سے نکل رہی ہے وہ اگر آگ میں ڈالی جائے تو میلٹ ہو جائے, پگھل جائے. اگر پگھلنے والی چیز ہوگی تو گویا کہ وہ ایک معدنیات میں سے شمار کی جائے گی اور اس کے اوپر زکات ہوگی. اور اگر پگھلنے والی چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے کھیت میں سنگ مرمر نکل آیا اور سنگ مرمر کا وہ بزنس نہیں کر رہا ہے, نکلا ہوا ہے. جب تک وہ بزنس نہیں کرے گا تب تک اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی. ہے میری بات؟ اچھا, اسی طریقے سے جتنے بھی اچھے قسم کے پتھر ہیں, اس میں ہیرا بھی ایک پتھر ہے, سمندر سے موتی ہے, زمرد ہے, مختلف قسم کے پلاٹونیم جسے وائٹ گولڈ آج کل کہتے ہیں, اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے. نہ ہیرے کے اوپر زکات ہے, نہ جواہرات کے اوپر زکات ہے, نہ پلاٹونیم کے اوپر زکات ہے, نہ موتی کے اوپر زکات ہے. کوئی بھی چیز قیمتی کتنا بھی پتھر ہو اس کے اوپر زکات نہیں. اس کی وجہ سمجھ لیں, اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو ہیرا ہے سب سے قیمتی, اس میں کیا ہے, ہیرا ہے. ہیرا کی ریسیل ویلو جو ہے نا پتہ نہیں ہے کسی کو. آپ ہیرا لے کر کے آئے ہیں, سنگاپور لے جا کر بیچیں گے, وہ بولے گا یہ تو ہیرا ہی نہیں ہے. گولڈ میں پوری دنیا اس کو گولڈ مانتی ہے, رگڑ کر دیکھ کر کے سارے لوگ ایک چیز پر وشواس کرتے ہیں, یہ گولڈ ہے. ہیرے میں مارکیٹ میں کیا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. اچھا, دوسری چیز کیمیکلی لحاظ سے یہ بات سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہیرے کے اندر جو قیمت چیز ہے وہ اس کا کاربن ہے. اگر وہ کاربن کسی وقت ختم ہو جائے تو ہیرا کیا بن جائے گا, پتھر ہو جائے گا, اور وہ کسی وقت اس کے ختم ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہیرے کے اوپر زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی پتھر ہیں اس میں کسی کے اوپر زکات نہیں ہے.
یہ ग्रेजुएटी होती है चीज, यहाँ नहीं होती है। अरब दुनिया में, यूरोप में ग्रेजुएटी होती है। और पीएफ, यहाँ पीएफ होता है। पीएफ समझते हैं ना? जो पीएफ आपका सरकारी तौर पे कट रहा है या ये कि प्राइवेट कंपनी में कट रहा है, वो पीएफ पर भी ज़कात नहीं है जब तक कि आप उसके ऊपर कब्जा न कर लें। क्योंकि अगर आप उसको निकालना भी चाहें तो आप निकाल नहीं सकते। उसके अगेंस्ट वो आपको लोन तो दे देंगे लेकिन पीएफ निकाल के नहीं देंगे। लिहाजा पीएफ जितना भी आपका जमा हो रहा है, आपका जो कट रहा है वो और प्लस जो वो उसमें से एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, दोनों मिल करके निकाल कर 200 रुपए तनख्वाह से कट रहे हैं, 200 रुपए सरकार डाल रही है, 400 रुपए मंथली पीएफ कट रहे हैं। और अब 10 साल हो गए हैं, उसके ऊपर 50,000 रुपए वो बन चुके हैं। उसके बावजूद भी जब आप ज़कात निकालेंगे तो इसको अपने माल में प्लस नहीं करेंगे, इसको प्लस करने की जरूरत नहीं। वजह उसकी ये है कि ज़कात उस चीज पर होती है जिस पर आप मालिक हो और आपका कब्जा हो। आप इसके मालिक जाहिरी तौर पर है, कब्जा आपका नहीं, आपके बस में नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस भी दो तरीके का है। एक इंश्योरेंस सरकारी तौर पर आपको कराना ही कराना है। ये जो सरकारी तौर पर इंश्योरेंस कराना ही कराना है, इसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन जो आपने अपनी मर्जी से इंश्योरेंस कर रहा है, ये एक अलग मसला है कि वो जायज है या ना जायज। लेकिन एक आदमी ने अपनी मर्जी से इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का कर रखा है और किस्तवार इंस्टॉलमेंट क्या कर रहा है, पे कर रहा है। आप अपने वाला जब चाहें बीच में क्या कर दें, इंश्योरेंस को ड्रॉप कर सकते हैं। इंश्योरेंस को आप ड्रॉप, ज्यादा क्या होगा कि आपकी पॉलिसी में आपको नुकसान होगा। आपको जो इंटरेस्ट का रेट मिलना चाहिए वो इंटरेस्ट का रेट नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने पैसे को जब चाहे तो वापस ले सकते हैं। ऐसी शक्ल में ये इंश्योरेंस जो सरकारी नहीं बल्कि पर्सनल है, इसको आप चाहें तो इसको आपको हर हाल, चाहे नहीं, इसको आपको हर हाल में अपनी ज़कात की रकम में प्लस मान करके ज़कात निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मुश्तरका तिजारत है। 5 आदमी मिल करके तिजारत कर रहे हैं। 5 आदमी का अगर टोटल मिला दिया जाए स्टॉक तो 39,000 से ऊपर है। अगर उसको बांट दिया जाए तो पता चला किसी का 39,000 नहीं पहुंच रहा है। नहीं समझे बात मेरी? 5 आदमी मिल करके तिजारत कर रहे हैं, हर आदमी ने 15-15 हजार लगा करके सामान लाया है। अब 1 साल के बाद जब उन्होंने अपना स्टॉक निकाला तो 52 तोला चांदी के बराबर स्टॉक नजर आ रहा है, लेकिन शरीक कितने हैं? 5 हैं। लिहाजा उस पूरे जो तिजारत की ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनी भी हो सकती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, फैक्ट्रियां भी हो सकती, जो कुछ भी हो सकती, उनमें उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर एक आदमी की कैपिटल इतनी है जिसमें 52.5 तोला चांदी वो खरीद सकता है और स्टॉक उसको 52.5 तोला का नजर आ रहा है, उसका अपना शेयर, तो ये बंदा अपना अकेले इंडिविजुअल ज़कात उसकी निकालेगा। समझ आ रही बात? तो मुश्तरका चीजें जब तक इंडिविजुअल तौर पर स्केल को नहीं पहुंचेंगी तब तक ज़कात नहीं होगी, और जब स्केल को पहुंच जाएंगी तो उसके ऊपर क्या होगी? ज़कात होगी। प्लॉट के बारे में आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कि जो प्लॉट हमने लिए हैं बेचने की नियत से वो हर हाल में ज़कात देना है। जो घर बनाने की नियत से लिया गया है उसके ऊपर ज़कात नहीं देनी है। ये बातें आपके सामने रखनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमने आपके सामने सिर्फ एक बात रखी है कि 2.5% ज़कात किन किन चीजों पे दी जाएगी और किन किन चीजों पर नहीं दी जाएगी। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि 5% और 10% किन किन चीजों पर दी जाएगी, और जिंदगी रही तो जानवरों की ज़कात के बारे में भी हम बात करेंगे कि जानवरों पर ज़कात का स्केल क्या है। आप शुक्र अदा करें परवरदिगार आलम का कि उस मजहब के मानने वाले हैं जिसने आपको कहीं डार्क में नहीं रखा है। समझे? हर चीज को बहुत 2-2 4 की तरह खोल करके बयान कर। ये एक अलग बात है हमारी नालायकी हो कि हम उस मजहब पर अमल न करना चाहें, वरना अल्लाह के रसूल ने जो बात फरमाई थी, तो मैं तुमको ऐसी राह पर छोड़ जाता हूँ जिसकी रातें दिन के मानिंद हैं, लैलुहा का नहारिहा। जैसे दिन में सारी चीजें नजर आती हैं, ऐसे ही रात भी मैंने ऐसी छोड़ी, उसमें भी तुमको सारी चीजें नजर आती। कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप कंफ्यूज रहें। सबके बारे में अल्लाह के फजल से सारी बातें बयान करके गए हैं। वाक़ो दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।